In our last class, we already have revised the chapter number 10. So in our few previous session, already we have revised the chapter number 6, 7, 8 and 9 and 10. So after revising all these chapters, now we have to solve the exercises of the recap and revision section. That is mentioned on the page number 94. So everybody should open the page number 94. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी ये रिवाइज किया था ना, ये सारे चैप्टर पढ़े हैं हम लोगों ने, पढ़ा है या नहीं? आप लोग को ध्यान है सारी चीजें या भूल गए? चलिए ठीक है, तो वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस वी नीड टू डिस्कस. द फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा इन दिस सेक्शन देयर इज अ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 6 और 10 के बीच में से कोई भी क्वेश्चन, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उन सभी टॉपिक्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है. ओके? यस सर. यस सर. First statement is the, first of all we need to fill in the blanks. So what is the main source of water? We need to write here. So how many students can tell the answer of this question? What is the main source of water? Show me your hand. Then I'll take the name. Then you need to speak. What is the main source of water? Which should be the, what should I fill this here? Mohit Gupta, tell us beta. What should I write here? Sir, rain. Rain. Very good. Rain is the main source of water. So now the next one, the plants and animals are, what should I write here? Components of the environment. Plants and animals are what type of components of the environment? Dibyanshi Verma? The living components. Yes, these are the living components. Correct. Aquatic animals do not have legs. जो aquatic animals क्या होते हैं आपको पता है ना? What are aquatic animals, Ankur Maurya? So animals that live on water, they are called aquatic animals. Aquatic animals do. Can you pardon please? What did you tell? What are aquatic animals? Aquatic animals that can live water, they are called aquatic animals. Animals that live in the water are called the aquatic animals. So aquatic animals do not have legs. अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको पढ़ाया गया है कि aquatic animals के पास तो legs तो होते नहीं. Then how they swim? तो legs की जगह पे उनके पास क्या होता है? Wing. आचल बताइए. Wing. क्या होता है? दिव्यांशी? Wing. Fins. Fins. Very good. Fins. Now the next one, what should I write here? What present in flower attract insects? जो insects को attract करने के लिए flowers में क्या present रहता है? What is present in the flowers to attract insects? ऋषभ तिवारी? The petals. Petal attract insect. जो petal कहीं ना कहीं flowers में petal रहता है जो कि insect को attract करता है. आंचल पासवान आप बताइए. So nectar. Nectar is the correct answer. Actually, insect suck the nectar of the flower. अगर उनको petal attract करते तो petal को पाने की कोशिश करते ना. The nectar presents in flower that attracts insects. Okay. नेक्टर की स्पेलिंग रॉन्ग है गलती से. ठीक है. नाउ एयर व्हाट टाइप, ये कौन सी यहाँ पे क्या लिखा जाए? एयर फ्रेग्रेंसेस अलोंग विथ इट. एयर डैश फ्रेग्रेंसेस अलोंग विथ इट.
व्हाट शुड आई राइट हियर? कौन बता सकता है? आंचल बता सकते हैं, ऋषभ बता सकते हैं, और किसको आता है? सर हम बताएं? नहीं नहीं, जस्ट वेट, हम बताएं ऐसे कहेंगे तो नहीं चलेगा काम। शिवांगी आपको आता है या नहीं बेटा? कुछ बता पाओगी? अभी आपने प्रॉपरली तो अभी पढ़ना शुरू किया है। फिलहाल ऋषभ बताइए। सर ब्रिंग। सर ब्रिंग। ब्रिंग, एयर ब्रिंग फ्रेगनेंसेस अलोंग विथ इट। ब्रिंग मीन्स क्या होता है जानते हैं? ब्रिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग? ले जाना। ब्रिंग मतलब ले जाना नहीं, लाना। मैं आपसे पूछूं ना, डिड यू ब्रिंग, डिड यू ब्रिंग द योर, डिड यू ब्रिंग योर लंच बॉक्स? तो आपकी इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या अपना लंच बॉक्स लेके आए हैं? तो एयर लेके आते हैं, फ्रेगनेंसेस अलोंग विथ इट। जो ये फ्रेगनेंसेस मीन्स क्या होता है? फ्रेग्रेंस मीन्स क्या होता है? सुगंध, जो महक है, ठीक है? इस महक को एयर क्या करता है? अपने साथ लेके आता है। आपने जो आंसर बताया है वो गलत नहीं है, ठीक है, बट उसको और भी बेटर किया जा सकता है। एयर मूव्स फ्रेग्रेंसेस अलोंग विथ इट। मूव्स, एयर जो है फ्रेग्रेंस को, यानी जो सुगंध होता है, जो महक होती है, जो गंध होता है, अच्छा या बुरा जो भी गंध होती है, एयर उसको अपने साथ मूव करता है। तो व्हाट शुड आई राइट हियर? मूव्स। वैसे फिलहाल ऋषभ ने भी जो बताया, दैट ऐसा नहीं है कि वो गलत है, दैट इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे टू, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इज एक तरीका है किस चीज का? अब ये बताना है। शिवांगी आप बताइए, बहुत आसान है बेटा ये। कनीश फातिमा आप बताइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है? रेन हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, जो तरीका है, उससे हम क्या करते हैं? कनीश फातिमा बताएं, रवि वर्मा आप बताइए, काजल वर्मा आप बताइए। रवि, काजल और कनीश फातिमा में से कोई भी बताइए। शिवांगी भी बताना चाहे तो बताएं। नहीं आता है? आप तीनों को नहीं आता है? रवि वर्मा ने वीडियो बंद करके गेम खेल रहे हैं, खेलते रहो बेटा। काजल वर्मा को भी नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं। अंकुर मौर्य आपको आता है बेटा कि नहीं? डू यू नो व्हाट शुड आई राइट हियर? नो सर। नो सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टॉपिक था, क्या उसमें पढ़ाया गया था? एक प्रोसेस था। दिव्यांशी वर्मा, व्हाट? कंजर्व वाटर। कंजर्व द वाटर, पानी को संरक्षित करने का, पानी के बचाव के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। तो इसमें क्या करते थे उस प्रोसेस में? पता है क्या होता था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कितने लोग बता सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कौन डिटेल में बता सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? काजल वर्मा, बातें बहुत हो चुकी, माइक बंद करके बात करिए। पढ़ाई नहीं करना तो बातें करना, तो दूसरों को डिस्टर्ब भी मत करो। हु कैन टेल द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? बताइए ऋषभ तिवारी। सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सर एक टैंक बिल्ड किया जाता है सर, उसमें सर टाइल्स लेट करी जाती है सर, उसके बाद पाइप्स के सर पाइप छत पे लगा के सर उसको टैंक से अटैच कर दिया जाता है, और सर जब रेन होती है तो उसमें पानी भर जाता है। बेटा आपको इसी बातों को आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टैंक, कंक्रीट टैंक, और उसमें क्या हम टाइल्स पे बिछा देते हैं जिससे वो रिसाव ना हो। And also we connect this tank through pipes, through pipes, so that whenever whenever it is raining, all the water, जितने भी पानी होंगे, they can collect the raining water can be collected in the tank through with the help of the pipe। जो भी बारिश होगी वो पूरा पानी
कहाँ पे, टैंक में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा. एंड वी कैन यूटिलाइज दिस वाटर फॉर व्हाट पर्पजेस. जो आपका ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तरीके से जो आप वाटर आप कंजर्व किए रखेंगे, जो संरक्षित किए रखेंगे, उस वाटर का यूज आप किसके लिए कर सकते हैं? कैन यू यूज फॉर द ड्रिंकिंग? ड्रिंक के लिए आप यूज कर सकते हैं? नो सर. नो. ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? कोई भी बताइए. Sir, we can हाँ? sir, we can use this water for household work. कहीं ना कहीं जो छतों का पानी होगा वो गंदा भी होगा, तो इसलिए वी कैन नॉट ड्रिंक इट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो क्या है? इट इज अ वे टू कंजर्व वाटर. तो कंजर्व जिसने भी बताया था आंसर, दैट वाज द करेक्ट आंसर. तो शैल वी मूव अहेड? अभी हम लोग आगे बढ़े. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. Hibiscus has fibrous root. Now tell me the answer whether it is true or correct. True or false? अच्छा, ट्रू के लिए आप 1 फिंगर, फॉल्स के लिए 2. What you all have to do? You have to show 1 finger for the true statement, and you have, if you feel that कि this is a false statement, then you have to show 2 finger. या तो 1 फिंगर शो करें या 2 फिंगर शो करें. इसी से पता चल जाएगा कि आपको आप ट्रू बता रहे हैं या फॉल्स बता रहे हैं. ऐसे में सभी बच्चे आंसर दे पाएंगे. Okay, many of the students are showing 2 finger. That means it is a false statement. वो क्या कह रहे हैं? सभी के सभी इसको false बता रहे हैं. Okay, okay. चलिए हम लोग एक बार देखते हैं फाइब्रस रूट क्या होता है. फाइब्रस रूट क्या होता है आपको समझ, कितने लोग बता सकते हैं फाइब्रस रूट के बारे में? फाइब्रस रूट के बारे में कौन बता सकता है? व्हाट आर फाइब्रस रूट? बताइए अंकुर. सर फाइब्रस रूट में कई सारे मेन रूट्स होते हैं. फाइब्रस रूट में मेन रूट तो एक ही होगा. क्या रूट में से बहुत सारे रूट निकले हैं या नहीं? यस, ऋषभ तिवारी बताइए. Sir, many roots grow from the end of the stem are called fibrous root. ठीक है, हम लोग देखते हैं. आई हैव ओपन पीडीएफ फॉर दैट. लेट अस सी. सभी लोगों ने फॉल्स बताया, इसी वजह से मुझे ओपन करना पड़ा, आपको दिखाना पड़ रहा है कि फाइब्रस रूट क्या होते हैं, और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ रूट. जो हिबिस्कस का जो एग्जांपल है दैट इज द टैप रूट. टैप रूट का एग्जांपल दिया गया है. ठीक है, दैट मीन्स हिबिस्कस हैज ए फाइब्रस रूट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वो क्या है इसका मतलब? ये फॉल्स है, बिकॉज हिबिस्कस जो है ये टैप रूट के अंदर इसका एग्जांपल दिया गया है. तो हिबिस्कस हैज ए टाइप ऑफ टैप रूट. ओके, दैट मीन्स जितने लोगों ने बताया सबके सभी के सभी, मतलब सभी बच्चों के आंसर सही निकले. अब क्या होता है टैप रूट या फाइब्रस रूट? एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं. ऐसे प्लांट्स, मतलब ऐसे जड़ें, ऐसे रूट्स जिनमें बहुत सारे रूट्स निकले हुए हों, तो वो टैप रूट कहलाएंगे या फाइब्रस रूट कहलाएंगे? यानी एक मेन रूट से बहुत सारे रूट्स निकले हों. इफ द प्लांट्स हैविंग द वन मेन रूट एंड फ्रॉम दैट मेन रूट there is a many smaller, from that main root there is many thin roots. that kind of root क्या कहलाएगा? टैप रूट कहलाएगा या फाइब्रस रूट कहलाएगा? Tap root. many smaller root. टैप रूट. जो फाइब्रस रूट होता है वो सीधा सीधा एट द एंड ऑफ द प्लांट, एट द एंड ऑफ द स्टेम, बहुत सारे ही, वो मतलब कोई मेन रूट ना होकर के कई सारे रूट्स उसके सीधा प्लांट से ही स्टेम से ही कई सारे रूट्स निकलते हैं, ना कि सिर्फ एक रूट से. तो आपका फाइब्रस रूट और टैप रूट ये होता है. सो लेट अस मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट. Glaciers and rivers are artificial sources of water. Now tell me whether it is correct or incorrect. True or false? Glaciers and rivers are artificial sources of water. True or false?
Okay, one for the true, two finger for the false statement. Okay, so I'm getting two fingers from Ankur Maurya. कई सारे बच्चे नहीं शो कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको आता नहीं है। बेटा मैं पूछ रहा हूँ जो ग्लेशियर्स हैं और रिवर्स हैं, रिवर्स यानी नदियां, ग्लेशियर्स मतलब जो आपके पर्वतों पे जो आपके हिमपात होते हैं, यानी जो बर्फ जमे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? क्या वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है? आपके वाटर के दो सोर्सेस पढ़ाए गए थे, नो सर, आर्टिफिशियल और दूसरा क्या पढ़ाया गया था? नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल, आर्टिफिशियल जो आदमी ने बनाया हो, जो हम लोगों ने बनाया हो, वो आर्टिफिशियल सोर्स है, और जो नेचर से मिला है दैट इज ए नेचुरल सोर्स। तो क्या ग्लेशियर और रिवर्स आदमी हम लोगों ने बनाया है? नहीं, तो ये आर्टिफिशियल, नो सर, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। Many students are also showing two finger, that means कि they are correct, it is the false statement. Now moving ahead, the third statement, burning crackers causes noise and air pollution. जो burning crackers, जो crackers को जलाने से, crackers means समझते हैं क्या होता है? सब पटाखे, पटाखा छुड़ाने से क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होता है। क्या ये सही है? ट्रू या फॉल्स? शो मी द आंसर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। यस, ऑब्वियसली बर्निंग क्रैकर जब धमाका होगा तो आवाज भी होगी, कई लोग जो बीमार होंगे परेशान भी हो जाएंगे, डर भी जाएंगे कई लोग। और जब ऑब्वियस सी बात है कि जब स्मोक्स उसमें से निकलेगा, जब धमाका होगा तो स्मोक्स भी निकलेंगे क्रैकर से, तो दैट विल कॉज, वो क्या कारण उसके लिए बनेगा? दैट विल कॉज द एयर पोल्यूशन, वो कहीं ना कहीं एयर को पोल्यूट करेगा। ओके, तो दैट मीन्स थर्ड वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। आपको पहला आपका क्या था? फॉल्स था। सेकेंड वॉज ऑल्सो फॉल्स। आपका थर्ड क्या है? थर्ड इज द ट्रू स्टेटमेंट। एंड द फोर्थ क्या? फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम। क्या फ्रॉग्स के पास जो जालीदार पैर होते हैं जो कि उसको हेल्प, मतलब स्विम करने में हेल्प करता है? ट्रू या फॉल्स? वन फॉर द ट्रू, वन फिंगर, टू फिंगर फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब कई बार फ्रॉग को तैरते हुए किसी ने देखा है कि नहीं? नो सर, तैरता ही नहीं तो कहां पे देखेंगे? जब तैर ही नहीं पाता तो वेब्ड फीट होगा या नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग। तो क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, ये फॉल्स है। क्या आप ये बताइए, क्या मेढक तैर नहीं सकता? सच बताओ। वेदर द फ्रॉग्स कैन swim in the water or not? तैर सकता है, This question. तैर सकता है ना? इन द वाटर। तो इसीलिए मैंने पूछा कि Yes, क्या, sir. क्या किसी ने देखा है तैरते हुए? मेढक के पास मैंने देखा है। मेढक के पास वेब फीट होती है, इसलिए तैर सकता है। यस, जिसने देखा है उसको बताना चाहिए। जब बारिश होती है तभी तो मेढक आते हैं, पूरा भरा रहता है पानी। तो फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। ठीक है। द याक इज एन आर्बोरियल एनिमल। अब आर्बोरियल एनिमल क्या है आपको पता है? आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? कौन कौन बता सकता है? बताइए। आर्बोरियल एनिमल्स, कनिष्क फातिमा बताइए। animals that spend most of their time in trees, they are known as arboreal animals. तो क्या याक जो है वो आर्बोरियल एनिमल है? शो मी योर आंसर। आर्बोरियल एनिमल जो क्या होते हैं दिव्यांशी वर्मा? व्हाट आर आर्बोरियल एनिमल? द एनिमल दैट लिव इन द ट्रीज आर कॉल्ड द आर्बोरियल एनिमल, यही तो होते हैं। तो क्या याक जो है आर्बोरियल एनिमल है? ट्रू या फॉल्स? शो मी योर आंसर। फॉल्स। फॉल्स। ये याक किस तरह का एनिमल है? ये फिर अगर आर्बोरियल तो नहीं है तो किस तरह का एनिमल है? Terrestrial animal. टेरेस्ट्रियल, वेरी गुड, टेरेस्ट्रियल एनिमल।
तो अभी आगे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। नाउ वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट एनी टू यूसेज ऑफ एयर। राइट एनी टू यूसेज ऑफ एयर। तो हु कैन टेल मी द टू यूसेज ऑफ एयर? एयर का दो यूज कौन बता सकता है? आंचल पासवान बताइए बेटा। Air help us breathe and air help us dry clothes. ओके बेटा, इसका आंसर तो फिलहाल बहुत सारे पॉसिबल हैं। आंचल ने बताया, और भी कोई बताना चाहेगा इन दोनों आंसर के अलावा? जो आंचल ने बताया वो नहीं बताना है, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर बताना है। एयर हेल्प अस ब्रीथ, दैट इज द करेक्ट आंसर। एयर हेल्प अस टू वाइंड टू ड्राई द वेट क्लोथ्स, यही तो बताया ना? क्यों आंचल पासवान? Yes, sir. ये दोनों आंसर। एयर हेल्प अस ड्राई द हेयर। हाँ कनिष्क फातिमा बताइए। एयर हेल्प अस ड्राई द हेयर। Air help us to dry the hair. Yes. Any other answer? Anybody else? अंकुर बताइए। Sir, air helps to move wind will blades. Air helps to move. Air helps to fly kites. Okay, दिव्यांशी वर्मा, any other answer from your side? Sir, air help us grow plants. आपको पता है कंपोजिशन ऑफ एयर में बहुत तरह की गैसेस होती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। दैट मीन्स कि एक आप ये भी कह सकते हैं, एयर हेल्प अस ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। एयर जो है ट्रीज की भी मदद करती है। तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हैं। एक आंसर मैं लिख भी दे रहा हूं। एयर we breathe in oxygen which is present in the air। सबसे पहला यूज ये हो गया। एक और यूज हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Sir, air help us breathe. एयर हेल्प अस ब्रीथ, ब्रीथ लिख तो दिया। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर, ये इसको मैंने दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया, बाकी तो वही है। अब एक और आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। जो आसान है वो सब तो आप लोग बता ही जा देते हैं। Plants take in carbon dioxide which is present in the air, which is नहीं, plants take in the carbon dioxide to prepare their food which is नहीं ऐसे, plants take in the carbon dioxide present in the air which is present in the air here for preparing their food। ओके, प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में ही मौजूद होता है। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। आप लोग चाहें तो इजी वाला लिख सकते हैं, जो आप लोगों ने बोला, एयर हेल्प अस टू ड्राई आवर वेट क्लोथ्स, एयर हेल्प अस। अब एयर नहीं, वो विंड यूज करता है। अब एयर और विंड में अंतर आपको पता है ना? सिर्फ एयर रहे तो क्या विंड आप हेल्प करता है? जो जैसे किसी बच्चे ने बोला, एयर हेल्प अस टू फ्लाई द काइट। अगर मैं सिर्फ एयर दे दूं तो क्या आप फ्लाई कर सकते हैं?
मूविंग एयर होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अभी छापिए नहीं, लोग छापना शुरू कर दिए, जो मैं पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हैं। इसका रिकॉर्डिंग जाएगा तो उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं आप अपने मर्जी से कर पाए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो आपका जो काइट को उड़ने में एयर नहीं मदद करता, वो विंड मदद करता है। विंड हेल्प द काइट टू विंड हेल्प्स द काइट टू फ्लाई। विंड हेल्प अस टू फ्लाई द काइट, नॉट एयर। अगर सिर्फ एयर हो तो एयर कहीं ना कहीं जगह तो घेरती है, बट जो मूविंग एयर है वही हेल्प करता है। तो एयर का यूज जो होता है दैट इज द, आप जो मैंने अभी लिखा दैट वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट। आप फिलहाल और भी चीजें एयर का यूज कर देते हैं हमने अपने गाड़ी के टायर में हवा भरने में, दैट इज द एयर, वो विंड नहीं होता। अंकुर मौर्य बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, पढ़ना लिखना है नहीं, सब बातें करो केवल। Write any two ways to conserve water. Now you all have to write any two way to conserve water. अब दो तरीके वो अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी तरीका लिख सकता है कि हाउ यू कैन कंजर्व वाटर। अब कंजर्व वाटर मीन्स क्या होता है, पहले ये बताइए। कंजर्व वाटर मीन्स क्या हुआ, जिसको भी आता है बताइए। कंजर्व वाटर मीन्स क्या होता है, नाम लेना पड़ेगा तभी बताएंगे। कौन कौन खेलना शुरू कर दिया? दिव्यांशी वर्मा। सुरक्षित करना, सुरक्षित करना। तो यही आपको आंसर बताने में 4 बार बोलना पड़ रहा है। सुरक्षित करना, ठीक है, तो कंजर्व करने के लिए तो वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ आपको। अच्छा सी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी चौथा हमने शुरू किया तो चौथे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। राइट एनी टू वेज, दो ऐसे तरीके बताइए जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। क्या हो सकता है आंसर, कोई भी बताइए। कौन बता सकता है? क्या करके आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्व मतलब संरक्षित करना, इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, हिंदी में ही बताइए। क्या हुआ अंकुर, नहीं पता आपको पानी को संरक्षण कैसे किया जाता है? जरा बताइए माइक ऑन करके। अंकुर, तालाब क्यों खुदवाया जाता है गांव में? पानी भरने के लिए। कि लोग आके यहाँ पे नहाए? नहीं ना, नहाने के लिए तो अपने घरों में नल है, लेकिन गांव में फिर भी तालाब खुदवाया जाता है। क्या करने के लिए? जो बारिश हो तो सारा पानी इकट्ठा हो जाए, वहां पे कंजर्व किया जा सके, जो कि कभी सिंचाई के काम भी आ सके। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, डैम्स बनवा करके। भाई बिल्डिंग डैम्स हो गया, डैम्स मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा। तालाब को आप पॉन्ड भी बोल सकते हैं, बाय बिल्डिंग मिनी पॉन्ड्स। अब पॉन्ड्स जो है वो आपका नेचुरल सोर्सेस हो जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं जो आपका आदमी लोग बना सकते हैं, जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पॉन्ड में तालाब होता है ना, तो पॉन्ड तो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये बताइए। नेचुरल। क्या पॉन्ड गांव में ऑटोमेटिकली नेचर से मिला है, या आपके जो भी यहाँ पे जैसे सरपंच होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं वो खुदवाते हैं जेसीबी वगैरह से? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आपने कभी खुदते हुए देखा है तालाब कैसे खुदवाया जाता है? नो सर। सुने हैं कि नहीं कि आपके हर गांव में तालाब बनाया जाता है, उसका सुंदरीकरण हो रहा है ग्राम प्रधान के माध्यम से। कभी अपने गांव के तालाब में गए हैं? आपके घर के आसपास या गांव के आसपास कोई तालाब है या नहीं? यस सर। क्या वो नेचुरल है या किसी ने उसको खुदवाया था, बनाया था, या वो नेचर से ही मिला था? क्या वो बेटा दिव्यांशी? आर्टिफिशियल है। हमारे गांव में तो फिलहाल हमारे सामने बनवाया ही गया है, हमने देखा है। तो दैट कैन बी। कई बार क्या चीजें हैं अगर नहीं बनी, कई बार आर्टिफिशियल पॉन्ड्स को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेनी ऑफ द पॉन्ड्स आर नेचुरल बट सम ऑफ हैज बीन आर्टिफिशियल। तो आपको करना क्या है, आप पॉन्ड्स खुदवा सकते हैं, डैम्स बनवा सकते हैं। डैम्स वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट, डैम्स आप बनवा सकते हैं। वी कैन बिल्ड डैम्स टू कंजर्व द वाटर, हम डैम्स बनवा सकते हैं। डैम्स में क्या होता है, पानियों को इकट्ठा करते हैं। वी कैन बिल्ड वाटर टैंक
and use the water harvesting system. Water harvesting system या water harvesting process to conserve the water. ये दो तरीके हो गए कि नहीं? आपको यही लिखना है, तो इसको लिखते हैं एक बार. जो पहला वे होगा, what should I write this one? Building dams and rainwater harvesting. सेकंड क्या हो सकता है? By building dams by following the process harvesting. By following the method of water harvesting system. ठीक है, ये दो तरीके से we can conserve the water.